پاسٹر جی کو دیکھ کے آج مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی. موسٹلی جو ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں وہ جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو بھول جاتے ہیں اور خود جا کے اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اسٹیج خالی تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سامنے بیٹھے رہے. ایک بار زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے. مسیح یسوع کا فضل اور اطمینان باکثرت آپ سب کو حاصل ہوتا رہے. میں ایک آیت کلام اقدس میں سے تلاوت کرنا چاہوں گا. خروج کی کتاب 20واں باب 12ویں آیت. مرقوم ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. مجھے جب اس پروگرام کے بارے میں بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ مجھے کلام اقدس کی منادی اس پروگرام میں کرنی ہے، تو اس سلسلہ میں جب میں نے ارشد گوری صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے ارشد گوری صاحب سے کہا کہ مجھے ٹاپک بتایا جائے کہ مجھے کس ٹاپک پہ بولنا ہے، بات کرنی ہے، تو ارشد گوری صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری پر آپ کو بولنا ہے. تو آج ہم ماں اور باپ، بلکہ اگر یہ جو میں نے آیت کوٹ کی تلاوت کی اس کو باغور پڑھیں تو یہاں پر ترتیب یوں ہے: باپ اور ماں کی عزت کرنا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی بات پر گیان دھیان کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں. یہ آیت جو میں نے کوٹ کی یہ 10 احکامات میں سے 5واں حکم ہے. اگر ہم 10 احکام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 4 احکام خدا نے بنی نوع انسان کو جو دیے وہ اپنی ذات سے منسلک تھے، ان کی خدا تعالیٰ کی ذات سے منسلک پہلے 4 احکام. باقی 6 احکام بنی نوع انسان کے باہمی طور پر یا زمینی اعتبار سے، اور جن کو ہم حقوق العباد کا بھی نام دیتے ہیں، وہ ہیں. اور ان میں سب سے پہلا یہ کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا گیا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. یہاں پر بات قابل غور ہے. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتا ہوں. زبانی دعوے کرنا کافی نہیں، اس کا پھل نظر آنا چاہیے. ایکٹ آف آنر کیا ہے؟ آنر کی بات تو ہے لیکن ایکٹ آف آنر کہاں پر ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے. اگر ایکٹ آف آنر کی بات کریں، عزت و احترام کا جو فعل ہے، عمل ہے، کس سے نظر آئے کہ ہم عزت کر رہے ہیں باپ اور ماں کی؟ تو یہاں پر اگر ہم بائبل میں آگے بڑھیں گے تھوڑا سا، تو جب باپ کی بات آتی ہے تو ماں علیحدہ نہیں.
अंडरस्टूड है कि मां भी साथ है। ये टेक्निकल बात जरा जहन में रखिएगा। तो याद रहे कि बाप और मां बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। एक लिहाज से बाप और मां प्रोड्यूसर हैं बच्चों के, लेकिन खुदा क्रिएटर है बच्चों का। ज़बूर नवीस 127वें ज़बूर में फरमाता है कि औलाद खुदावन की तरफ से मैरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। अब लाजम ये है कि प्रोड्यूसर और क्रिएटर दोनों की इज्जत की जाए। अब इज्जत कैसे की जाए? इज्जत के लिए 2-3 अमल अज़हद जरूरी हैं। पहला, फरमाबरदारी। और अगर मैं कहूं कि यही एक एक्ट है जिसमें सारी बातें पोशीदा हैं और सामने आ जाती हैं, इसमें इसी एक्ट में, फरमाबरदारी के एक्ट में, माँ और बाप की मर्जी को पूरे करने का भी अमल आ जाता है। जब हम फरमाबरदारी करते हैं तो फरमाबरदारी का अगर हम डिक्शनरी में मतलब देखें तो इसका मतलब है हुक्म पर अमल करना, बात मानना, बात सुनना, और ना सिर्फ सुनना बल्कि उस बात पर अमल पैरा होना और हुक्म की तामील करना। ये फरमाबरदारी के मतलब हैं अगर डिक्शनरी को कंसल्ट किया जाए तो। अब यहां पर हम देखें तो क्रिएटर ने आदम और हवा को खलक किया और क्रिएटर की ख्वाहिश थी कि वो उसकी इज्जत करें और क्रिएटर उनसे रफाकत रखना चाहता था। और क्रिएटर ने एक हुक्म भी दिया था कि तुम इस दरख्त का फल ना खाना, जिस रोज तुमने खाया तू मरा। अब आदम और हवा ने हुक्म अदूली की। हुक्म अदूली का नतीजा ये हुआ कि वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और मरने से मुराद खुदा की हजूरी का उनसे जुदा हो जाना, यह है मतलब। खुदा उनसे रफाकत को ख़त्म करता है, यह है मतलब मरने का, कि तू उसी रोज़ उसी वक्त मरा। सो याद रहे कि हुक्म अदूली करने के बायस गुनाह ने जन्म लिया। और कलाम अक़दस में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, खुदा के जलाल से महरूम है। यहां पर चलते चलते ये बात कहना चाहता हूं कि हम जो खुदा के जलाल से महरूम हैं, हम कभी भी खुदा को जलाल दे नहीं सकते। खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं, हाँ, वो हमें अपने जलाल में शामिल करता है। वो जलाल का बादशाह है। मैं गुनाह की पैदावार हूं, मैं कैसे गुनाह की पैदावार होने के नाते उसको जलाल दे सकता हूं जो जलाल का बादशाह है। मैं उसका जलाल जाहिर तो कर सकता हूं, उसको जलाल दे नहीं सकता। हाँ, वो जलाल देता है। अगर यीशु अल मसीह की तवील दुआ का मुताला यूहन्ना के इंजीली बयान के 17वें बाब में करें तो वहां पर जिक्र मिलता है कि दर हकीकत जलाल है क्या? वो जलाल का बाप है। वो जलाल जो हमसे छिन गया गुनाह के बायस, हुक्म अदूली के बायस, वो जलाल दोबारा हमें देता है। ये करेक्शन करने की जरूरत थी क्योंकि इस वक्त गलतुल आम बहुत सारी बातें हमारे में राइज कर चुकी हैं और इसलिए मैं इसकी निशानदही करना चाहता था। अब चूंकि जलाल छिन गया, खुदा की हजूरी जाती रही
रफाकत टूट गई, लेकिन खुदा मोहब्बत से कभी भी दस्तबरदार नहीं हुआ। जो वो दिलचस्पी आदम और हवा बनी नौ इंसान में रखता था, उससे दस्तबरदार नहीं हुआ। वो मोहब्बत से सरशार रहा, क्योंकि वो क्रिएटर है। क्रिएटर होने के नाते वो शफकत को उससे दस्तबरदार नहीं हुआ, मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हुआ। और लिखा है कि वो हिस्सा बा हिस्सा, तरह बतरा नबियों की मार्फत अपने लोगों से हम कलाम होता आया, ताकि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए और छीना हुआ जलाल वापस पाएं। खुदावन के साथ जो टूटी हुई रफाकत है वो बहाल हो। लेकिन बिल आखिर जब वक्त पूरा हुआ तो कलाम अक़दस में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। सो मेरे अजीजों, गुनाह के बायस मौत ने जन्म लिया, गुनाह ने मौत को जन्म दिया और गुनाह की मजदूरी मौत ठहरी। मौत के डंक को खत्म करने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा। अब इज्जत की बात आती है, वही इकलौता बेटा जब इस दुनिया में आया तो वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और सलीबी मौत को लानती मौत डिक्लेयर किया गया है तारीख में, बाइबल मुकद्दस में। और बावजूद बेटा होने के उसने सलीबी मौत गवारा की। वो बेटा जिसके बारे में कलाम अक़दस में बरमला मरकूम है और यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान में इस बात की शहादत देता है कि जो कुछ इस कायनात में, दुनिया में खलक हुआ, वो उसी की बदौलत, उसी के वसीला से, उसी के लिए हुआ। तो याद रहे कि ये इकलौता बेटा अपनी जात में अज़ली भी है, अबदी भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, कादिर मुतलक भी है, और वो खुदा की सूरत पर भी है, खुदा में से खुदा है, वो खुदा के बराबर है। अगर हम मुकद्दस पालूस रसूल का फिलिपियों के नाम खत देखें तो यहां पर मरकूम है 2 बाब की 6 आयत में मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं, उसने यानी यसू ने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा की सूरत पर होने से मुराद खुदा में से खुदा और मुतकल्लम का कलमा मुजस्सम हुआ, और इसलिए चूंकि वो मुतकल्लम का कलमा है, वो खुदा का कलमा है, वो कलमतुल्लाह है, जो मुजस्सम हुआ वो मुतकल्लम खुदा का कलमा है जो मुजस्सम हुआ। तो इस लिहाज से वो खुदा में से खुदा, और खुदा होने के नाते वो क्रिएटर है, और इस दुनिया में रहते हुए उसने साबित किया कि ही इज द क्रिएटर। उसने जन्म के अंधे को शिफा बख्शी। लिखा है कि जब जन्म के अंधे के पास गया, मट्टी ली, उसको हथेली पर रखा, थूका और मट्टी को साना, उसकी आंखों पर लगाया, और क्या हुआ? वो अंधा देखना शुरू हो गया। महज उसकी आंखों पर मट्टी नहीं लगाई गई, बल्कि थियोलॉजियन कहते हैं कि उस क्रिएटर ने उस सानी हुई मिट्टी से आंख बनाई, आंख बनाकर मट्टी की आंख उसने फिट की और वो देखना शुरू हो गया। अकनू में अव्वल के साथ अकनू में सानी होने के नाते यसू अल मसीह तख्लीक कायनात के वक्त वहां पर मौजूद था, और वो तख्लीक कायनात में मसरूफ था। जब मसरूफ था
कायनात को खलक किया तो वो ज़मीनी तौर पर भी जब मुजस्सम हुआ तो वो ही वॉज ऑलरेडी क्रिएटर, वो जानता था कि क्रिएशन क्या है, और उसने जन्म के अंधों को बिनाई बख्शी, जन्म के लंगड़ों को चलाया, और ना सिर्फ ये बल्कि उसने मुर्दों को हुक्म दिया और 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आ गया। उसके हुक्म की तामील करते हुए वो कब्र से बाहर आ गया। इस लिहाज से वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अब यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि इब्रानियों का मुसन्नफ फरमाता है, बावजूद बेटा होने के, बावजूद क्रिएटर होने के, बावजूद अज़ली और अबदी होने के, बावजूद कादिर मुतलक होने के, बावजूद खालिक होने के, बावजूद कलमा होने के, बावजूद इकलौता होने के, उसने दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी। फरमाबरदारी सीखना दुख वाला प्रोसेस है, इतना आसान नहीं, तकलीफ दे प्रोसेस है। दुख उठाकर उसने फरमाबरदारी सीखी, और जब दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी तो इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी नजात का बायस हुआ। जब दुख उठाकर फरमाबरदारी सीखी जाए तो कामलियत का प्रोसेस शुरू होता है। तो याद रहे कि जब उसने मौत कबूल की, सलीबी मौत, तो यूहन्ना के अंजीली बयान के 10वें बाब की 18वीं आयत में यीशु कहते हैं कि ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला, सलीबी मौत का, और इसीलिए यीशु अल मसीह ने हुक्म की तामील की। यीशु अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। गसमनी बाग में बशरियत गालिब आने लगी तो इकलौते ने, यीशु ने, इकलौते बेटे ने, मुजस्सम कलमे ने फरमाया, आए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम बतौर औलाद अपने जिस्मानी वालिदैन को, अपने आसमानी बाप को कितनी मर्तबा कहते हैं कि बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सवाल है, लेकिन याद रहे कि जब हम उसी मसीह मसलूब को, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जब उसको कबूल कर लेते हैं तो कलाम अक़दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और उन्हीं फर्जंदों के बारे में पतरस रसूल अपने पहले खत के 14वें पहले बाब की 14वीं और 15वीं आयत में फरमाते हैं, फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। अब पाक बनने के लिए क्या है? गुनाह आलूद जिंदगी से रहाई पाने के लिए क्या है? क्योंकि हमारी रास्तबाजी गंदी धजियों की मानद है। हम दागदार हो गए और नापाक हो गए, और खुदा की जात इस कदर पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। हम तो गुनाह आलूदा हो गए। मारूसी तौर पर आदम के गुनाह की बदौलत हम गुनाहगार ठहर गए। लेकिन याद रहे, इब्रानियों का मुसन्नफ फरमाता है, तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहे मुआफी नहीं होती। ये शरीयत का कानून है। ये कानून खुदा ने मुकर्रर किया कि बगैर खून बहे मुआफी नहीं होती, और शरीयत के मुताबिक हर एक चीज खून से पाक की जाती है। वो खून जो पाक है, बेऐब है, मुकद्दस है, और ज़ाते अक़दस, मालूदे मुकद्दस, कलमा खुदा, मुजस्सम खुदा और
अकनू में सानी यसू अल मसीह, जिसने मौत और कब्र को शिकस्त देकर हमें कामिल उम्मीद बख्शी कि जो मसीह यसू पर ईमान लाते हुए मनो मट्टी के नीचे चले जाएं, वो भी जी उठेंगे मौत और कब्र को शिकस्त देकर। तो याद रहे कि उसी के पाक और बेऐब और मुकद्दस लहू की बदौलत हम पाक ठहरते हैं, क्योंकि रोमियों को खत लिखते हुए मुकद्दस पालूस चौथे बाब की 9वीं आयत में फरमाते हैं, खून के बायस अब रासबाज ठहरे तो गज़बे इलाही से हम जरूर ही बचेंगे। आखिरी कोटेशन देना चाहता हूं रोमियो को खत लिखते हुए मुकद्दस पालूस रसूल 5वें बाब की 19वीं आयत में फरमाते हैं, जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, आदम की तरफ इशारा है, आदम अव्वल की तरफ इशारा है, इसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत सारे लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आदम सानी कलमा खुदा जो मुजस्सम हुआ यसू अल मसीह, उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि उसने फरमाबरदारी की एक मिसाल कायम कर दी और दुनिया में और जमानों में इस रूए जमीन पर कोई तारीख ऐसी नहीं जिसमें कोई ऐसी मसील मिलती हो जैसी यसू अल मसीह ने कायम कर दी, क्योंकि उसकी जात पाक और बेऐब है, उसकी जात में गुनाह नहीं। वो अपने नाकदीन में खड़े होकर बरमला वाशगाफ अल्फाज में फरमाते हैं, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। सो मेरे अजीजों, हमें उसी को फॉलो करना और उसी की मानद फरमाबरदार रहना है, जान देने तक भी, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज पाएगा। आज हमें अपने जिस्मानी और रूहानी और आसमानी बाप और माँ दोनों ही की रिस्पेक्ट करनी, इज्जत करनी और फरमाबरदारी करनी और उनके ताबे रहना और उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्जी को अवलीन दर्जा और तरजीह देते हुए हुक्म अदूली के गुनाह से बचना और फरमाबरदारी करते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। खुदावंद कलाम अक़दस की इन गहराइयों को समझने, कबूल करने और इसके मुताबिक अमली तौर पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए।